Hello everyone, this is Dr. Praveen Tripathi and I'm very happy to interview Dr. Gaurav Saini and Dr. Ashri, two of my very dear students. Gaurav got a score of 235, right Gaurav? Yes, sir. In the FMG examination and Rashri got 179, Rashri, right? Yes, sir. So first of all, bache, many congratulations to both of you. Thank you Thank you, so sir. much, sir. And the fact that it was the very first attempt and you guys got such great scores, makes it even sweeter. Yes, So, so let us talk about the preparation. So you guys are a part of Cerebellum family from the pre-launch days, right? yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So let me talk Rashi first. Talk to Rashi first. Rashi, so when did you seriously start preparing for the exam? I mean, orientation towards the exam. When the exam-oriented study started. Sir, actually, I started my preparation in the 2023 only, Okay. because when I subscribed the Cerebellum Mm-hmm. in pre-launch time, Mm-hmm. and then only I got to know that this online platforms are there for preparations. Mm-hmm. So then only I purchased this, and from that time onwards I started my preparation. Right. So were you doing the main videos in the beginning or what was Yeah, the yeah. you Yes, were sir. I completed my all the main videos okay. from the Cerebellum, and I completed my all the main videos last year only, on the 17th January only, on 2025. And after 10 days, I think the mission classes was started. I think 28th of January. Mm-hmm. So I joined that, and but I think पूरा complete नहीं हो पाया था lab 1 also, because of uh, uh, last year last year preparation of my college. Okay, right. So So you hmm, you were still in the college at that time, right? yeah. So what you're telling me is you started with the main videos during the college years, but I mean when you had to prepare properly, when you became eligible, Hmm. then you shifted to the Mission 200 plus classes, the live classes. Yes, sir. And Gaurav, was the same true for you as well? यस सर, एक्चुअली वी बोथ वर ग्रुपमेट फ्रॉम बिगिनिंग। तो Okay, और जब हमने फोर्थ ईयर से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन right, की, right. उससे पहले हम कोविड और वॉर की वजह से अपने 3 साल बर्बाद कर चुके थे। Mhm, और mhm, वो उस टाइम पे एकदम से पैटर्न शिफ्ट हुआ था। हम mhm, आप लोग के इंटरव्यूज देखते थे और वीडियोस देखते थे, तो तब हमें पता लगा था कि अब वन लाइनर्स का धीरे धीरे दौर जा रहा है और वी हैव टू डू क्लिनिकल स्टडी मोर एंड मोर। और mhm, नेक्स्ट की भी स्पेकुलेशंस बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे। mhm, सो वी सिट टुगेदर, टू और आवर फ्रेंड्स आल्सो सिट टुगेदर एंड वी डिसाइडेड ओके हमें सेरिबेलम लेना है। mhm, उस टाइम यूट्यूब पे सर आप लोग के जो फ्री सेशंस होते थे, mhm, जो mhm. वहाँ उस टाइम पे एग्जाम चल रहे थे, उनके रिगार्डिंग हमने वो जब देखे सेशन तो हमें बहुत इंप्रेसिव लगा। एंड थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद हमें विश्वास हो गया कि हम लेजेंडरी फैकल्टीज के साथ जाना पसंद करेंगे। Mhm. रेस्ट इज द हिस्ट्री सर। This is the history, as people rightly say. Gaurav, Mission 200 Plus program, Lap 1, the live classes, you used to follow all of them diligently? Were you very regular with them? सारे करते थे? यस सर, जैसे राजश्री ने बताया कि लास्ट सेमेस्टर ऑफ यूनिवर्सिटी तक भी हमने ट्राई किया था, बट अच्छा। हम लास्ट सेमेस्टर में सिर्फ लैप वन ही हम्म। कर पाए थे। वो भी शायद कंप्लीट नहीं हुआ था, एक दो सब्जेक्ट हमारा रह गया था। बट जब हम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके घर पे आए, हम्म। देन वी स्टार्टेड रिलीजियसली फॉलोइंग, लाइक अगर हमें अच्छे से रिवीजन करनी है तो मिशन 200 प्लस की एक ही क्लास को हमें डे वन से लेके लास्ट डे तक जाना है। All right. आपकी हर एक वीडियोस मतलब कि हम्म। एग्जाम के लास्ट डे तक एफर्ट नहीं छोड़ने, वो चीजें मतलब बिल्कुल फॉलो करी। और सारी मतलब क्लासेस कोई मिस नहीं करी सर हमने, चाहे वो लेट नाइट पीवाईक्यूज हो, हम्म। लेट नाइट मैराथन क्लासेस होगी, वट एवर वॉज देयर इन मिशन 200 प्लस वी फॉलोड रिलीजियसली। All right. So राष्ट्रीय बेटा, जैसे classes is one thing, theory is one thing, but Hmm. application of theory is equally important. So that is Yes, why sir. we insist कि आप लोग ENDs दें, test and discussion करें Yes, एग्जाम sir. के बाद. So were you Hmm. guys doing the test and discussions regularly? Yes, sir. Each and every END, each and every GT, Hmm. every late night PYQs, not even a single we have missed. Hmm. Like Hmm. लास्ट टाइम में भी, एग्जाम के कुछ टाइम पहले भी बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव हो गया था सब कुछ, हाँ। कि Hmm. काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट आपसे हमने पूछा भी था कि नींद नहीं आ रही है एंड ऑल दैट, Hmm. बट हमने छोड़ा नहीं, क्योंकि आपने बोला था रेगुलर रहना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। Hmm. तो वी वर रेगुलर। Very nice.
गौरव, जैसे ENDs हैं, राइट? आई मीन an attempt is made to teach the students how to approach a particular MCQ. Or you very rightly said that the days of one liners are long gone. I mean, इस बार का जो पेपर था, many questions were tougher than what are asked in INICET exams, right? Long questions, conceptual question. So END से कितना फायदा होता है एक MCQ को अप्रोच करने में? सर बिफोर दिस इंटरव्यू वी वर लाइक डिस्कसिंग विद ईच अदर कि जो इस बार का एग्जाम आया था ना, वो लाइक नोट से हटके कई बार चीजें उन्होंने ऐसी चीजें पूछ ली थी कि वो एक जनरल एक MBBS डॉक्टर को पता होनी चाहिए थी। या, राइट। उनको क्लिनिकल वे में पूछा उन्होंने। तो जो ENTs में फॉर एग्जांपल मैं PSM का एग्जांपल लूंगा सर। विवेक जैन सर ने हमें ENTs के थ्रू ऐसे ट्रेन कराया कि एग्जाम में अगर आपके पास मतलब आउट ऑफ द बुक्स भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आ जाए तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है आपसे। और सर एप्लीकेशन लेट नाइट PYQs में तो हम करते ही थे अपने कॉन्सेप्ट की, पर उसका एक एडवांस वर्जन जब हमें ENTs में मिलता था तो हमें अपनी तरफ से ये नहीं होता था कि हमें कहीं और से कुछ उठा के क्वेश्चन करने हैं। हमारे पास सब मटेरियल था। हम जैसे ही एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते थे, बीट लैप 1 और लैप 2, हमारे पास उसके बाद एक END ओरिएंटेड होता था। हमें सुबह उठ के टेस्ट देना है, अपनी मिस्टेक एनालाइज करनी है, और जो जो हमने मिस्टेक कमिट करी होती थी, शाम को जो हमारा लाइव END सेशन होता था, टीचर के साथ हम कम्युनिकेट करते थे, जो हमारी मिस्टेक्स थी वो डिस्कस करते थे। और ऐसे धीरे धीरे वो जो मिस्टेक्स थी वो पॉलिश किया, और ये भी पता लगा कि सिर्फ नोट्स को रट लेने से कुछ नहीं होने वाला, उनकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बार बहुत बच्चे बोल रहे थे कि PSM में बहुत ज्यादा बाहर का आया। एग्जाम से जब मैं बाहर निकला था मेरे को भी ऐसा लग रहा था, बट वो कहीं ना कहीं लैप 1 में चीजें इनकॉर्पोरेटेड थी। इट्स ऑल अबाउट कि हम कैसे उस चीज को डिग आउट करके निकाल पाए कि हमने कहाँ पे वो चीजों को पढ़ा था। राइट। राष्ट्रीय, जैसे लैप 1 होता है, लैप 2 होता है, लैप 3 होता है। सो द स्ट्रक्चर हैज बीन क्रिएटेड इन सच अ वे दैट वी कवर थिंग्स इन अ डिटेल्ड मैनर in lap 1, but ensure at least 3 revisions. Like we say that first revision should happen with lap 1. Lap 2, Yes, many students do one revision on their own in the daytime. In the evening, they revise with us. And yes. finally, in marathons, we have the third revision, fourth for some. So do you think this pattern of covering the course and then ensuring 3 revisions was good enough for you to enter the examination hall with everything fresh in your mind? Yes, sir, definitely. It's very good. Because for us, like, मतलब जैसे लैप 1 हुआ, आप क्लासेस मतलब स्टार्ट हुआ, आपने शाम को क्लासेस अटेंड की, एंड सुबह वही चीज आप रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो इन बिटवीन जब भी आपको टाइम मिल रहा है, एंड देन अगेन क्लासेस। Right. तो एक बैलेंस हो जाता है कि आपको फुल डे क्या करना है, आगे क्या करना है, फिर आपके पास बीच में लैप 1 और लैप 2 के बीच में अगर कुछ ऑफ डेज रहते हैं तो आपको पता होता है कि आपको उनसे वीक एरियाज में काम कर सकते हो। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लान, लैप 1, लैप 2 एंड लैप 3। राइट। गौरव, हम लोग आई थिंक पिछले 5-6 महीने में कई बार बात हुई, टेलीग्राम पे आपसे बात होती रहती, यस सर। राइट? इफ आई आस्क यू टू लुक बैक एट द इंटायर मिशन 200 प्लस प्लान, क्या चीज है जो कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियल आपको लगी कि यार ये एक एक्स फैक्टर था जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ? सर एक तो वो जो अप्रोच होती है ना कि मतलब एक स्टूडेंट को खुद से कुछ नहीं करना, उसको जस्ट फॉलो करना है टीचर्स को, कि वो जो पढ़ा रहे हैं उसको आप मतलब लास्ट पत्थर पे लकीर होती है ना, वो समझ के आप पढ़ लो उसको। क्योंकि सिलेबस को नैरो डाउन कैसे कराना है, लास्ट पेज तक आते आते इंपॉर्टेंट चीजें चीजें जो भी है वो टीचर खुद आपको प्रेजेंट कर रहा है अपनी नोट्स के फॉर्म में, तो आपको अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालने। प्लस सर इस बार लाइक हमारा बैच ही सौभाग्य था वो जिसको सेरिबेलम के जो जितने भी GTs होते हैं उसमें वीडियो सोल्यूशन शुरू से हाँ, लेकर एंड तक का राइट। सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो वो सबसे गेम चेंजर था सर हमारे लिए, क्योंकि थ्रू आउट माई प्रिपरेशन सर हम दोनों ने 14 GTs और मॉक दिए। नाइस। और थ्रू आउट वो जब, क्योंकि हम ये डिसाइड करके बैठते थे कि अगर हमें एक दिन GT को डिवोट करना है तो हम पूरा दिन ही वो GT को डिवोट करेंगे। दोपहर तक हमारा GT हो जाता था, सुबह से लेकर दोपहर तक, एंड शाम से लेकर रात तक हम उसको पूरा अच्छे से एनालाइज करते थे, अपनी मिस्टेक्स को फिल्टर लगा के सब्जेक्ट वाइज, और देखते थे कि कौन से जो टॉपिक्स थे हमने गलत किए हैं, क्या हमारे नोट्स में से था, क्या चीज हमें अच्छे से आती थी बट किस वर्डिंग की वजह से हमने वो मिस्टेक करी। और ऐसे ही हमने धीरे धीरे एनालाइज किया, और
अच्छा रहा, मतलब जर्नी जो जीटीज की। फॉर फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल लूँ, तो जब मैंने अपना फर्स्ट जीटी दिया था 17 जनवरी 2025 को, मैंने अपनी फर्स्ट रीड कंप्लीट कर ली थी मेन वीडियोस की। उसके बाद टू चेक द लाइक बेस नॉलेज की अभी मैं मेंटली कितना प्रिपेयर हूँ, कि मैं जर्नी तो स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी प्रिपरेशन की सीरियस होके, कि एक बार बेस लाइन चेक कर लेते हैं कितना। तो तब मैंने जब जीटी दिया था तब मेरे 190 आए थे, तो मेरे को इतना विश्वास हो गया था कि ओके, अपना इतना होल्ड है कि चीजें हमें समझ में आ रही है, हमें ये पता चल रहा है कि एग्जामिनर क्वेश्चंस के थ्रू पूछना क्या चाह रहा है। राइट। देन तो सर देर वाज नो लुकिंग बैक, फिर अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करते चले गए। और मैं अपने सारे यूनिवर्सिटी जूनियर्स को भी और अपने फ्रेंड्स को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी मिस्टेक्स पे अगर आप काम करोगे जीटीज के थ्रू, यूएनडीज के थ्रू और लेट नाइट पीवाई के थ्रू, उस वो चीजें ही आपको पास कराती हैं। जो नए 20-30 क्वेश्चन होते हैं वो कभी डिसाइड नहीं करते कि आप पास होंगे क्या नहीं। इस करेक्ट। बार भी जब हम एग्जाम से निकले थे, हम 4-5 फ्रेंड हैं, हम सबको ऐसा लग रहा था कि क्या पेपर आ गया है, क्या देख लिया। बट मन ही मन में ये भी सोच रहे थे कि हमने इतनी मेहनत करी है, तो जो कोर जो हमें पास कराने वाला स्कोर होगा वो तो हमारे नोट्स के बाहर से नहीं था। इनफैक्ट कई क्वेश्चन को तो देख देख के सर इतनी हंसी आ रही थी कि ये क्लासेस में ऐसे इतने फनी वे में हमने पढ़ा हुआ है, सर ने ऐसे पढ़ाया हुआ, और ये इतने बिल्कुल इजी फॉर्म में पूछा गया है। तो इट वाज मतलब एक अलग लेवल का, ऐसा लग रहा था कि बस सरिवेलम का एक मॉक एडवांस लेवल में हम सामने सीबीटी मोड में दे रहे हैं। चलो नाइस। सो गौरव ने बहुत अच्छे से बताया। राशि, इफ आई आस्क यू, if a junior were to come to you and somebody who Yes, could sir. not pass the exam this time unfortunately and Yes, ask sir. you what exactly needs to be done, what are the things that should be kept in the mind to crack this exam, तो क्या सजेशन होगा बेटा आपका? Sir, I would say that be consistent and राइट। trust yourself and be positive. हम्म। अपने आसपास के लोगों से अफेक्ट नहीं होना है, एंड बी कंसिस्टेंट एंड ट्रस्ट द टीचर्स, आई वुड से। मतलब जो टीचर्स ने बोल दिया इतना तो आपको करना ही है, इससे कम नहीं कर सकते आप। करेक्ट। तो आई थिंक दिस। पूछूंगा, मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा कि एग्जाम की जो जर्नी होती है उसमें यस सर। क्या, जैसे आप लोगों ने अच्छे स्कोर कर पहली बार में पास किया, बट क्या आप लोगों के लिए सब कुछ स्मूथ था, या फिर देयर वर टाइम्स व्हेन यू वर हैविंग अप्स एंड डाउन्स, व्हेन यू वर एंग्शियस कि होगा कि नहीं होगा, क्या करूंगा? क्या राशि, स्टार्टिंग विथ यू। यस सर। सर इन स्टार्टिंग, मतलब जैसे गौरव ने बताया कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब जब हमने फर्स्ट जीटी दिया था तब हमारा हमने क्रॉस कर दिया था वो बॉर्डर। बट उसके बाद ऐसा था कि नहीं, ये टारगेट नहीं है अभी, क्योंकि हमें थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा टारगेट। अगर इन केस अगर कुछ भी होता है तो हम थोड़ा नीचे भी आते हैं, तो अफेक्ट नहीं होना चाहिए उससे। बट जैसे जैसे प्रैक्टिस किया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ भी। लेकिन बहुत सारे, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड नहीं तो अगर आसपास अपनी चीजें बहुत सारी ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन ठीक था कि ठीक है, अगर कोई एक भी रह रहा था ऐसे तो एक था संभालने वाला कि हाँ नहीं ऐसा नहीं अभी और आगे करना है। तो बहुत सारे थोड़े बहुत स्ट्रगल्स बोल सकती हूँ मैं कि ऑब्स्टिकल्स आए, बट राइट। एट द एंड सब कुछ हो गया था। गौरव। सर यही बोलूंगा कि लास्ट 6 मंथ में अगर आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हो, तो अपनी हेल्थ का और अपनी स्लीप हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखो। इट अफेक्ट्स अ लॉट सर। लास्ट में आते हुए मैंने बहुत स्ट्रगल किया, आई कंसल्टेड यू ऑल्सो सर। लाइक लास्ट तक आते आते वो फटीग इतना आ जाता है, और प्लस उस टाइम पे वो फैक्टर आता है कि हर किसी को लगता है कि यार कुछ याद नहीं रह रहा, कुछ याद नहीं रह रहा, कुछ याद। हम किसी से भी बात कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड से मैं बात कर रहा हूँ, कोई मेरे को आगे आगे पूछ रहा है कि भाई तेरे को सब कुछ याद रह रहा है कि मेरे को नहीं याद रहा। तो वो चीजें प्लस उसके साथ एक स्लीप साइकिल पूरा डिस्टर्ब हो जाना बहुत ज्यादा सर अफेक्ट करता है। तो इट्स बेटर कि आप अपना स्लीप साइकिल, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डिफरेंट टाइम जोन से अभी इंडिया में ट्रेवल करेंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो सबके लिए रिकमेंडेशन नहीं है ट्राई टू अडेप्ट टू द इंडियन टाइम जोन, क्योंकि एग्जाम हमारा सुबह मॉर्निंग से होना है और हमें शाम तक का बिल्कुल अटेंशन स्पेन चाहिए। सो कोशिश करो कि सुबह उठ के अपने आप को फ्रेशन होके जो एक्टिव रिकॉल है या रिवीजन है जो भी आपका नोट्स है उसको पढ़ो, और ताकि शाम को आप क्लासेस अटेंड करो। लाइक वो जो टाइम पीरियड है जिसमें आपको एग्जाम देना है एक्चुअली में जाके, वो आप अलर्ट होने चाहिए थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। चलो नाइस गाइस, वेरी हैप्पी टू सी बोथ ऑफ यू सक्सीड, ऑल्दो आई वाज वेरी श्योर कि तुम दोनों पास होना ही होना है अच्छे स्कोर के साथ, आई न्यू दैट। बट अभी ये है कि थोड़ा सा रेस्ट करो, थोड़ा सा एंजॉय करो, बट नाउ वी हैव अ बिगर ऑब्स्टिकल, अ बिगर बिगर टारगेट टू अचीव नाउ, राइट? You guys would be staying back in India, or you do plan to go outside again?
No, Yeah, sir, in we will be India only. preparing for PG only हाँ, here. तो अब INI-CET और नीट पीजी की तैयारी करनी है अच्छे से बेटा, है ना। बहुत लंबा गैप मत Yes, रखना, डू नॉट लेट द मोमेंटम yes, sir. गो वेस्ट, है ना। थोड़ा सा रिलैक्स Yes, करना sir. बनता है, बट नॉट टू मच। चलो, आई थिंक Yes. विल स्टे कनेक्टेड। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू गाइस सक्सीडिंग इन एफएमजी, एंड आई वुड बी इवन मोर हैप्पियर व्हेन आई इंटरव्यू व्हेन यू गेट अ रैंक अंडर 100 इन नीट पीजी और INI-CET, Yes, राइट। sir. Definitely, sir. चलो, वंडरफुल, प्राउड ऑफ यू गाइस, वेल डन, वेल डन। Thank you, Thank you, sir. sir.